A very good morning to all. Welcome back to Ashoka Exam Guru. My name is Praveen, and today we are here to do some exciting questions on chapter sound. In the previous video, we have solved some questions on force and pressure, which was again a very important chapter. But this chapter, I promise, this chapter will give you some very good amount of questions in your Scenic School examination that is going to be happen on 18 January next year. So I think all of you are ready. I think we should start with directly without any wasting more time. Okay, so this is our application, Ashoka Exam Guru. I think you all know about this application. If you don't know, please download it from Play Store. This is our Telegram channel and this is our Instagram profile. You all must check it out. Yes, without wasting any further time, let us start with the first chapter. I've got some very good PYQs. All the PYQs I have taken in this PDF. सारे ही PYQs on your curriculum, जितने भी sound से बन सकते हैं. And again, sound is a very important and very practical chapter, जिसको समझना और करना बहुत आसान है और जो आपको पेपर में बहुत सारे मार्क्स देके जाएगा. I'll promise you after this class, you will not have any question left which is important for your examination. So this is our first question. We should start our first question like this. Okay, I hope everybody knows the rules of the class. First, we have to read very carefully all the questions. We have to read very carefully. And second, we have to read the options. And thirdly, we have to understand what it is asking. And thirdly, we should start the solution. Yes. So this is the first question. Yes. Everybody read with me. Loudness of sound is measured in the units of. This is our first question. That is again was asked in 2022. In the starting of the 10 questions, I have got 20 questions for you. In the starting of 10 questions, I have got PYQs, previous year questions for you. After that, I have also mentioned some very important questions which have very high probability to come into an examination, that are most expected ones also. So please be in this class. अपने बिस्तरों से बाहर आओ. Just get ready with your pen and paper. Just for 1 hour, I'll take your 1 hour mostly. Please be ready. We are going to start. Yes. Loudness of sound is measured in units of. What is the unit of sound, everybody? This chapter is sound. The question is asking what? ये question हमसे क्या मांग रहा है? Okay. This question is asking that loudness of sound is measured in the units. This is asking for the unit. What is the unit of loudness? Everybody, I think this is the first question. Very good to start. And everybody knows the answer. That is decibels. What is it called? dB or decibels. Very good start. We should move on to the next question. Yes, this is our next question. Noise pollution is measured in. Again a PYQ of 2017. Noise pollution is measured in. So अभी हमने देखा कि हम साउंड को किस में मेजर करते हैं. साउंड को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं. ये पूछ रहा है नॉइज पोल्यूशन, जो बाहर इतनी सारी नॉइज हो रही है, ट्रैफिक की, स्पीकर्स की, सारी नॉइज, उसको हम किस में मेजर करते हैं. तो भाई जब साउंड को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं तो नॉइज भी तो एक साउंड ही है, उसको भी हम किस में मेजर करेंगे? डेसिबल्स में. उसको भी हम किस में मेजर करेंगे? डेसिबल्स में. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर A. So this would be your correct answer, decibels. I think we should move on to the next. Yes. Okay. Again a very interesting question asked in 2021. Okay. Read it with me. The loudness of sound depends on it. It is again asking the same question but in different manner. Whenever the question asks that the loudness और कोई भी aspect, जितना भी question हमसे पूछ रहा है, that it depends on, it is proportional to, it is a factor of, these all three are the same type. क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा बट वी डोंट हैव टू नो, घूमना नहीं है हमको, हमें सिंपली समझना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है. इट डिपेंड्स ऑन इट्स. हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था which was again a PYQ of 2022 which was asking loudness of sound is measured in the units of. वो पूछ रहा था कि units क्या है, वो measure किस में होता है. एंड अभी उसके बाद this question is again asking loudness of sound depends on its. Okay, this answer, I think everybody knows the answer of this question. Should I mark the answer?
Everybody done it? Yes. Amplitude. The answer is amplitude. So what do you mean by amplitude? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा this amplitude, time period, frequency and speed. So हमें पता है कि distance time graph होता है साउंड का. साउंड का एक distance time graph होता है, ऐसा होता है. So it is asking for the amplitude कि एक साउंड कितना लाउड होगा. लाउड कब होगा? जब उसके डेसिबल्स हाई होंगे. डेसिबल्स एक वैल्यू है साउंड को मापने की. तो साउंड कितना हाई होगा वो कैसे डिसाइड होगा कि उसके डेसिबल्स कितने हाई हैं. सो वो अगर मैं एक इतना सा एक वेव बनाऊं, ये है साउंड वेव एक, ठीक है. सो इस साउंड वेव में ये है इसका एम्पलीट्यूड. दिस इज द एम्पलीट्यूड हाइट. सो ये हाइट जितनी ज्यादा होगी ना, हमने कभी कभी फोन में ना, कभी हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो कभी रेड की तरफ जाता है, कभी पीछे ही रहता है जब हम धीरे बोलते हैं. तो तेज कितना होगा साउंड अगर ये नेक्स्ट मोमेंट ऐसे चला गया. सो दिस हैज अ हाई एम्पलीट्यूड. दिस हैज व्हाट? दिस हैज अ हाई एम्पलीट्यूड. ये वाला एम्पलीट्यूड is showing that loudness high है. So again the amplitude is the answer of loudness. Yes, loudness of sound is proportional to this. I was saying that loudness of sound is proportional to what? अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले that proportional to, depends upon, units and all these things. हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन मांग क्या रहा है. द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, वहां पूछ रहा था डिपेंड्स अपॉन. और एक और क्वेश्चन बनता है दैट विल आस्क दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन, और या फिर पूछेगा इट इज अ फैक्टर ऑफ. सो हमें घबराना नहीं है. दिस इज आस्किंग फॉर सिंपली इट डिपेंड्स अपॉन. ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब किसके हिसाब से चेंज होता है. तो क्वेश्चन इज आस्किंग लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू. सिंपली अभी हमने पढ़ा था, इज इट द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी. आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर. अभी तक सबको पता हो जाना चाहिए. द एम्पलीट्यूड, अभी ग्राफ सीखा था ना, ये पीछे वाला ग्राफ, दिस वॉज द ग्राफ, दिस वॉज द ग्राफ वी हैव स्टडीड. ये जो बन रहा था ना, ये जो हाइट बन रही थी यहां पर, ये दिखा रही थी उसका एम्पलीट्यूड कितना है, एक साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है. ये सबके दिमाग में आना चाहिए जब भी एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी की बात आए, ठीक है. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स विल आल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ दिस. यस, both sound wave and light waves, again a very important, don't miss this question. I think this would be a most expected question of your next examination, that both sound and light waves can be propagated through. propagate किससे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि एक साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल वेव, सबको पता है, हैव रेड. बट ये पूछ रहा है साउंड वेव और लाइट वेव्स दोनों किससे प्रोपगेट हो सकती हैं. अगर मैं दोनों वेव्स को एक साथ छोड़ दूं एक मीडियम में, तो वो कौन से मीडियम से प्रोपगेट हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. इज दैट वैक्यूम, या फिर ये एयर है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज है. वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये पूछ रहा है बोथ. दिस इज आस्किंग फॉर बोथ. एवरीबडी, I think we all know that sound is a mechanical wave. Sound कौन सी wave है? Sound is a, write it down. Don't just see the video. Sound is a mechanical wave. And on the other hand, light is a electromagnetic wave. सो ये दोनों, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. फॉर हेयर, साउंड के ऐसे और कौन सी वेव होती हैं? टेल मी, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ. साउंड की जैसी और कौन सी वेव होती हैं? इसके जैसा एक और एग्जांपल बताओ जरा. अच्छा, इसके जैसा भी एक और एग्जांपल बताओ मुझे, जो इसकी तरह देखिए. साउंड की जैसे कौन सी दिखती हैं? वाटर वेव्स, जो वाटर में वेव्स होती हैं. व्हेनेवर यू ड्रॉप अ स्टोन इन दैट, तो उसमें भी एक मीडियम चाहिए. यहां पर लाइट वेव्स में कौन सी और एक होती है? फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स भी बिल्कुल लाइट वेव्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं. अब इसमें अंतर क्या है सर? आपने एक तरफ लिख दिया दैट इट इज अ मैकेनिकल वेव, और एक तरफ लिख दिया दैट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इसकी प्रॉपर्टी ये है दैट
It needs a medium. It needs what? It needs a medium. And on the other hand, it does not need a medium to travel or propagate. ठीक है? Does not need a medium, okay? No medium required. This is very important, gentlemen. हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए पहले से. एग्जाम में इट विल आस्क यू दैट व्हाट हेयर हमारे पास कौन सी एक मैकेनिकल वेव है और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर फॉर नाउ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट. तो जब हमें पता चल गया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए, एंड वैक्यूम क्या एक मीडियम है? वैक्यूम क्या एक मीडियम है? वैक्यूम का मतलब तो कोई मीडियम नहीं है, जैसे स्पेस. तो भाई साउंड तो इसमें ट्रैवल ही नहीं कर सकता. अगर मैं लाइट को और साउंड को वैक्यूम में छोड़ दूं तो साउंड तो ट्रैवल ही नहीं करेगा. स्पेस में कोई आवाज थोड़ा आती है, सन्नाटा होता है एकदम. सो दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड. अगर दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड तो थर्ड ऑप्शन वुड आल्सो बी एलिमिनेटेड. इट इज आस्किंग फॉर बोथ ए एंड बी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर दैट एयर. एयर ही ऐसी है हवा जहां पर साउंड और एयर और साउंड और लाइट दोनों ट्रैवल कर सकती है. आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर नाउ. दिस इज द कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एग्जाम्पल भी पता चल गए, पूछ लेगा एग्जाम में that what is the example of electromagnetic waves and what is not. So you must be knowing it. Shall we move to the next question? Yes. An ultrasound equipment works at a frequency of, again a PYQ. I have found very important PYQs. These PYQs, ये questions बहुत ही ज़्यादा important है बच्चों. These are PYQs and this have a high probability that ये अभी तुम्हारे आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं. थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, एक आध वैल्यू चेंज करके, दिस विल अगेन कम इन एग्जामिनेशन. तो जब हमें पता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, सो व्हाई नॉट सॉल्व इट टुडे. तो हम आज ही से इसको सॉल्व करते हैं. एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट. अल्ट्रासाउंड किसने किसने कराया भाई? अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो होता है वो पूछ रहा है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. एवरीबडी, 4 options: higher than 20,000 hertz, higher than 10,000 hertz, lower than 20,000 hertz and lower than 10,000 hertz. बताओ भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? अच्छा, हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1/time period. सबको ये फॉर्मूला पता होगा. लेकिन व्हाट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. एक साउंड वेव की 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस आई या फिर ऑसिलेशंस आए, दीज आर कॉल्ड ऑसिलेशंस. उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट एन फ्रीक्वेंसी ऑफ, एवरीबडी गिव द आंसर. क्या होगा इसका आंसर? टेल मी व्हाट इज द आंसर. 20,000? इज इट हायर देन 10,000 ओनली, या फिर 20,000 से कम, या फिर 10,000 से कम? अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड क्या है? अभी हमने एग्जाम अपने करिकुलम में पढ़ा है दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ. कौन से होते हैं? एक अल्ट्रासाउंड होता है, और एक कौन सा होता है? और एक कौन सा होता है? एवरीबडी, ऑडिबल. ठीक है. और एक कौन सा होता है? इंफ्रासोनिक. सबको पता है ये बात कि एक ऑडिबल होता है और एक इंफ्रासोनिक होता है. सो दिस ऑडिबल इज जहां पर हम सुनते हैं. दिस इंफ्रासोनिक इज, इंफ्रासोनिक में कौन से आते हैं? इंफ्रासोनिक में जैसे एलिफेंट्स और वेल्स. एलिफेंट्स और वेल्स होते हैं जहां पर. और अल्ट्रासाउंड में एक तो अल्ट्रासाउंड डिवाइस ही हो गया. एंड और कौन से जीव जंतु इसे यूज करते हैं? बैट्स एंड डॉग्स. और भी करते हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वंस. ओके, सो ये अल्ट्रासाउंड है, ये असल में है कौन सा? कितनी फ्रीक्वेंसी से हायर वाले होते हैं? सो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग हायर देन 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं, दीज आर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. कौन से होते हैं ये? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. और अल्ट्रासाउंड कौन सी वेव्स यूज करती हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. क्या नाम है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. एवरीबडी नोज इट. So shall we move to the next question? Yes. Okay, again a very
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बताओ भाई, इसका आंसर जिसने बताया, आई विल गिव यू अ गिफ्ट. यस, again a PYQ, most recent one. This is the most recent one. Okay, human ears are sensory organs that help to hear sound. Its outer portion can be seen. ये बोल रहा है ह्यूमन ईयर जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है. क्या सेंस करता है ये साउंड को सेंस करता है. जैसे आंखें इमेज बाहर की सारी लाइट को सेंस करती हैं, ठीक है. दैट हेल्प टू हियर साउंड. इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन. हमारे कान का बाहरी जो हिस्सा है वो हम देख सकते हैं. द रेस्ट ऑफ द डेलिकेट एयर इज बरीड डीप इनसाइड द स्कल. और बाकी जो डेलिकेट बहुत नाजुक कान है वो हमारे सर के अंदर फिट हुआ है. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर. क्या पूछ रहा है एवरीबडी? वाई वी आर जस्ट रीडिंग दिस सो डिटेल्ड? हम ये चीज मिस नहीं कर सकते. दिस इज आस्किंग फॉर व्हाट सीक्वेंस? इट इज आस्किंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ आउटर टू इनर. सो क्या बताओ भाई, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. इसमें से आउटर कौन सा है और इनर कैसा है? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड राइट इन द कमेंट्स. आई विल सी द कमेंट्स एंड रिप्लाई ऑन इट. सो बताओ भाई, इज इट ऑडिटरी ड्रम? पहला वाला कौन सा होता है? ईयर ड्रम, पिन्ना, ऑडिटरी ट्यूब और इनर ईयर. एवरीबडी, सबको इतना तो पता होगा दैट बेसिक जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, दिस बोन पार्ट, दैट इज कॉल्ड पिन्ना. सो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, सबसे पहले सी होगा. एवरीबडी कैन सी. ओके, फिर कौन सा होगा? इज इट ईयर ड्रम होगा? नहीं. उसके बाद होगा ऑडिटरी ट्यूब. उसके बाद क्या होगा? डी. ठीक है. एंड देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ऑडिटरी ट्यूब के बाद क्या होगा? इनर ईयर या फिर ईयर ड्रम? इट इज ईयर ड्रम. उसके बाद तो ईयर ड्रम होगा ना, जहां पर ड्रम बजते हैं. ड्रम बजते हैं सर वहां पर? नहीं, जहां पर सारे इनर जो ईयर होता है, सॉरी, जो इनर ईयर होता है वो फिट हुआ होता है. मतलब जो जहां पर इनर ईयर होता है उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम. अंदर जहां पर साउंड वेव्स आती हैं, टकराती हैं और अंदर वाले पार्ट में जाती हैं. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम ईयर ड्रम वी हैव इनर ईयर, दैट इज ई. दैट इज व्हाट? दैट इज ई. एंड फ्रॉम ई जो नर्व्स होती हैं जो साउंड को लेके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, दैट इज ऑडिटरी nerve. That is auditory nerve. I think now you are all clear. ये जो सीक्वेंस है ना, that can be changed. ये तुम्हारे एग्जाम में चेंज होके भी आ सकता है. So don't think कि यही सीक्वेंस आएगा एग्जाम में. We have to understand कि पहले पार्ट कौन सा होता है और बाद में पार्ट कौन सा होता है. Okay, अगर समझ नहीं आ रहा है, if this is hard to understand, I've got a very interesting image. I've made a very interesting image for you. Yes. This is that. Everybody, can you all see the different parts? हमने अभी auditory tube पढ़ा, which is not here. हमने अभी auditory nerves पढ़े, which is also not here. Because यहाँ पर एग्जाम में सेम पिन्ना या फिर ऑडिटरी ट्यूब नहीं लेके आएगा. क्या पता वहां पर ईयर ड्रम या फिर ओवल विंडो या फिर कॉकलिया आ जाए. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले कौन सा है और बाहर कौन सा है. प्रैक्टिस द डायग्राम, बार बार इसको अपनी कॉपी में बनाओ. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल मेमोराइज इट. इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. यस. सबसे पहले ईयर कैनाल, जो ये बाहर वाला पार्ट वी कैन सी, दैट इज द ईयर कैनाल. ये वाला पार्ट, ओके, आई कांट राइट द ऑन द, गिव मी अ मिनट. यस, यस, ये जो ईयर कैनाल है, ठीक है. उसके बाद वी गो इनसाइड, देन जो बाहर के बोन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिन्ना. एंड मूविंग इनसाइड, this is the auditory tube we were talking about. We were talking about this auditory tube. यहां से बाहर से आते हैं एंड यहां अंदर मूव होती हैं सारी साउंड वेव्स, ठीक है, ऑडिबल रेंज की. एंड देन वी हैव हैमर, देन वी हैव एनविल, देन वी हैव द ईयर ड्रम. हमने पहले पढ़ा था पिन्ना, देन वी हर्ड अबाउट द ऑडिटरी ट्यूब, देन हमने ईयर ड्रम पढ़ा. देन मूविंग ऑन टू दैट हमने ऑडिटरी नर्व पढ़ी नहीं. मूविंग ऑन टू दैट हमने एक पढ़ा था ऑडिटरी ये ट्यूब. ओह सॉरी, व्हाट वाज दैट? इट वाज यस, सबसे पहले पिन्ना, देन ऑडिटरी ट्यूब विच वाज द मेन कैनाल जहां से हमारे साउंड्स अंदर जा रहे थे, देन ईयर ड्रम, देन द इनर ईयर. यस, देन इट वाज इनर ईयर. इनर ईयर यहां पर नहीं है मार्क है, लेकिन द इनर ईयर इज होल दैट पार्ट. दिस पार्ट इज द
इनर ईयर। एंड इस इनर ईयर का सिर्फ एक ही काम है, सारे नर्व, सारे जो साउंड वेव्स हैं उसको इकट्ठा करना एंड कहाँ देना, यहां देना। दिस ऑडिटरी नर्व, ये एक नस होती है। नस मीन्स इट इज अ स्मॉल वेन स्ट्रक्चर जो हमारे सारे साउंड वेव्स को लेता है और ब्रेन तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? टू ब्रेन। यस। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट या फिर इसको बना लो। यू विल फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन एग्जामिनेशन। यस। Okay, again a very important question number 8. 2020 का PYQ है, don't miss it. The speed of sound is maximum in. ये पूछ क्या रहा है? First of all, read the question. The speed of sound is maximum in. Okay, solve this question. Pause the video and try to understand कि सबसे ज़्यादा लिक्विड में होती है साउंड की स्पीड, सॉलिड में होती है, एयर में होती है, या फिर किसी में भी नहीं होती है? Everybody, have you solved it? Shall I give you the answers of this now? Yes. जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, कभी तुमने वो देखा है स्कूल में घंटी कैसे बजती है? वो एक लोहे का या फिर तांबे का वो होता है एंड देन वी हिटेड बाय अ हैमर, वो भी शायद मेटल की होती है। तो मेटल्स जो होते हैं ना, जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा तेज साउंड को उधर भेजते हैं। कभी सोचा है वो क्यों होता है साउंड का? इसीलिए बिकॉज साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड्स में। वो मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड्स में। एंड उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में या फिर एयर में। सो आई शैल गिव यू द सीक्वेंस। द सीक्वेंस गोज लाइक दिस। सबसे पहले सॉलिड्स, एस फॉर सॉलिड्स, एंड उसके बाद हमारे आते हैं लिक्विड्स, उसके बाद हमारे आते हैं एयर। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये किसका सीक्वेंस है? ये किसका सीक्वेंस है बच्चों? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। यस, ये सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले सॉलिड्स, देन वी हैव लिक्विड्स, देन वी हैव एयर। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ह्यूमन हियरिंग रेंज लाइज बिटवीन। अभी हमने बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेंजेस। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है बच्चों? अल्ट्रासोनिक, एलिफेंट्स और वेल्स वाली। ठीक है, एलिफेंट्स और वेल्स वाली, या फिर डॉग्स या बैट्स वाली? यस, डॉग्स या बैट्स वाली। Secondly, the audible range, and the third one is what? Third one is what? Infrasonic, elephants और whales वाली. Okay, so infrasonic वाली कौन सी है इसमें? Okay, tell me the all ones. यहाँ पर audible वाली कौन सी है? ये पूछ रहा है हमसे। Human hearing range, इंसान, यानी इंसान कौन है? हम है ना। तो हमारी hearing range कितनी है? हम कितने साउंड की फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं? कहां से कहां तक? फ्रीक्वेंसी है कैसे पता? क्योंकि यहां पर हर्ट्स है। हर्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। आई थिंक एवरीबडी नोज दिस सिंपल थिंग दैट हर्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें ह्यूमन जो होते हैं वो कौन सी सुनते हैं? आई थिंक सबको मेरा हिंट मिल चुका है, मैंने पहले ही सबको हिंट दे दिया है। उप्स, यस। सो दिस इज द आंसर दैट 20,000 हर्ट्स। पेन इज नॉट क्लियर आई थिंक। यस, 20,000 हर्ट्स। ओके, दिस इज द ह्यूमन ऑडिबल रेंज। ये कौन सी रेंज है? ऑडिबल रेंज है, जिसमें हम सुन सकते हैं चीजों को। इसके बाहर जो 20,000 से ज्यादा होती हैं उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, एंड जो 20 से कम होती हैं दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। एवरीबडी, इज दैट क्लियर? राइट इन द कमेंट्स दैट इज दैट क्लियर। जो 20 से कम है दैट इज इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 ऑडिबल रेंज, एंड 20,000 से आगे वाली अल्ट्रासोनिक। ओके, shall we move to the next question? Yes. Pitch of sound depends on. अभी हमने क्या पढ़ा था? In the third or fourth question it was that loudness of the sound depends upon. But अभी we are more concerned about pitch. Pitch जो होती है ना, pitch. अच्छा, what do you understand by pitch? हमें सबको पता है, हम जब बोलते हैं तो किसी की आवाज पतली, किसी की मोटी, ऐसे ना बोलते हैं भारी आवाज है इसकी, डीप आवाज है। सो दैट इज द फैक्टर विच डिफाइंस पिच। कभी किसी बच्चे की आवाज देखी है? उसकी पिच बहुत हाई होती है। ओके, विसल देखिए, विसल जब हम सीटी मारने आते हैं, ओके, मारना मत है ना, मम्मी डांटेंगे। ट्राई टू मेमोराइज दैट कि जो विसल वाली आवाज होती है, जो पतली आवाज होती है ना बच्चों वाली, दैट हैज अ हाई पिच। दैट हैज व्हाट? दैट हैज अ हाई पिच। तो ये पूछ रहा है जो पिच होती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? अगर पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी ऑफ मीडियम। रिमेंबर, इट इज आस्किंग फॉर पिच।
इट इज आस्किंग फॉर पिच. ओके, ये पूछ रहा है किस पे डिपेंड करती है. हमने पढ़ा था लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. सो यू हैव टू मेमोराइज दैट पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. पिच डिपेंड्स ऑन, रट लो इस बात को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? इट वाज आस्क्ड इन 2023. वेरी रिसेंटली इट वाज आस्क्ड. ये बहुत ही अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले इट वाज आस्क्ड. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे, जैसे ड्रम की आवाज देखिए, ड्रम की, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. फ्रीक्वेंसी वाज व्हाट? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ये एक वन ऑसिलेशन है. तो ये जो एक है ना, एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन, ये कितनी बार हो जाएगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. तो 1 सेकंड में जितनी बार, अगर ज्यादा बार किसी ने वाइब्रेशन कर लिया तो हाई फ्रीक्वेंसी. कम हो रहा है वाइब्रेशन तो लो फ्रीक्वेंसी. सिंपल. ओके, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस. Echo. Everybody can see the question. Echo. Everybody knows about echo. किसको नहीं पता echo क्या होता है? I think everybody knows what is echo. हाँ. Echo can be heard only if the minimum distance of the reflecting wall. Echo क्या होता है? कि एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, मोनू, ठीक है, मस्त हंस रहा है. This is a wall. Okay. एंड इसने कुछ चिल्लाया, कुतुब मीनार गया, कहीं गया, ठीक है, ये बहुत पुराने फोर्ट में गया, इसने चिल्लाया, एंड इसकी जो वॉइस है ना, ये रिफ्लेक्ट होके इसी के पास आई. सो इसको हम कहते हैं एको. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं? एको कहते हैं. तो ये जो एको हुआ है ना, इसका ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, कहां से? मोनू से वॉल तक का, ये मिनिमम कितना होना चाहिए? सो जेंटलमैन, इसका जो डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए. कम से कम कितना होना चाहिए? 17 मीटर्स. एवरीबडी, क्या पता है ये बात? कितना होना चाहिए? 17 मीटर्स. इससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन इससे कम होगा तो एको नहीं आएगा. एको करने के लिए मतलब आवाज को गूंजने के लिए, आवाज गूंजती है ना बड़े से खाली हॉल में, व्हेन वी चिल्लाते हैं हम लोग ना, तो आवाज गूंजती है ना. सो उसके लिए मिनिमम उस दीवार से हमारे तक का डिस्टेंस 17 मीटर चाहिए. एवरीबडी समझ गए? ओके, आई थिंक अब आगे बढ़े. यस. ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिवाइस दैट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अभी हमने सीखा कि एको होता है, सर आवाज जाती है, टकरा के वापस आती है. बट ये पूछ रहा है जो इस प्रिंसिपल को यूज करता है ना, दैट डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? वो जो डिवाइस है ना, यंत्र है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ये पूछ रहा है किस पे काम करे? किस पे काम करे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे. किस पे काम करे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे. तो क्या वो सोनार है? क्या वो रेडार है? क्या वो स्टेथोस्कोप है? क्या वो एम्पलीफायर है? अच्छा, सबको पता है स्टेथोस्कोप क्या होता है? आई थिंक सबको पता है. पता है ना? हाँ जी. तो जिसको नहीं पता है, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जो अपने गले में लेके होता है ना, हार्ट बीट चेक करता है, उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप. तो जो डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है, वो किस पे काम करता है? क्या वो स्टेथोस्कोप है? क्या वो रेडार है? रेडार मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार? सबको पता है? नहीं पता है? अच्छा, सोनार की क्या होती है? क्या होती है सोनार की फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. एंड रेडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, सबको याद रहेगा ये बात. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ओके, बताओ फिर. जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है अंडर वाटर, अंडर वाटर कौन यूज करते हैं? ज्यादातर सबमरीन्स. पानी की गहराई देखने के लिए, या फिर हम कितने ऊपर हैं वो देखने के लिए, हाइट कम बढ़ करने के लिए, है ना. जो सबमरीन्स होती है वो पानी के नीचे होती हैं. सो इसमें जो मेन प्रिंसिपल होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, एको का होता है. बट वो उसको कहते क्या हैं, जो डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडार. इज दिस रेडार और सोनार? यस, इट इज सोनार. इसको हम क्या कहते हैं? सोनार. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. व्हाट वाज रेडार? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. यस. द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज. अभी हमने पढ़ा, सिंपल है,
सबको पता है, जस्ट मार्क द करेक्ट आंसर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला आंसर। मोर देन 20,000 किसका होता है? अल्ट्रासोनिक। किसका होता है? सॉरी, किसका होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, sorry, yes, it was ultrasonic waves, and less than 20,000 it is audible, and less than 20 hertz it is infrasonic. Yes, shall we move to the next question? Yes. Okay, the time taken to complete one oscillation, अभी बताया था that oscillations are what? This is यार, okay, this is one oscillation. This is what? This is one oscillation. यहां से जो यहां तक है ना, स्टार्टिंग टू एंड, ये है वन ऑसिलेशन। तो ये पूछ रहा है एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जो टाइम टेकन है, किसकी बात पूछ रहा है? टाइम की बात पूछ रहा है। किसके लिए? एक ऑसिलेशन में जो पूरा होने के लिए टाइम चाहिए। ये जो एक ऑसिलेशन है ना, ये यहां से शुरू हुआ होगा साउंड वेव, यहां पर खत्म होगा, इसका टाइम पीरियड कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइम पीरियड। सिंपल, दिस वाज वेरी सिंपल। पता नहीं इसमें क्यों बच्चे अटक रहे हैं छोटे से सवाल पे। एंड इट वाज आल्सो इन योर बुक, सो आई हैव टेकन इट इन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये जो IMP लिखा है ना, इट वाज नथिंग बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले एग्जाम में दिस विल आस्क। सिंपल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। आगे बढ़े। हाँ जी, द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दे रखा है ना, कुछ तो दे रखा है। ये फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, हाँ, ये जो फॉर्मूला है, ये पूछ रहा है ये किसका है फॉर्मूला? क्या ये स्पीड ऑफ लाइट का है? क्या ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का है? क्या ये स्पीड ऑफ साउंड का है? या फिर ये प्रेशर का है? किसका है ये फॉर्मूला? अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको पता है ना? नहीं पता है? ओके। अच्छा, यहां पर ये जो एफ है ये क्या है? ये जो एफ है ये क्या है सर? फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी। किसका है ये फॉर्मूला? किसका है ये फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी का है। एंड ये जो उल्टा वाई है, इस उल्टे वाई को हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। इसको जो डोनेट होता है, ये किसका डोनेट होता है? वेवलेंथ का। इट डोनेट्स, लैम्डा डोनेट्स व्हाट? इट डोनेट्स वेवलेंथ, इट डोनेट्स फ्रीक्वेंसी, एफ डोनेट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वी है, ये फॉर्मूला किसका है? एवरीबडी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्पीड ऑफ साउंड। तो जब स्पीड ऑफ साउंड निकालनी होती है तो हम उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ को निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। हाँ, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, अभी हमसे पूछा था कि जो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? अब ये पूछ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कम बढ़ कब होती है? कम बढ़ भी तो होगी कभी कभी, उसका कुछ डिसाइडिंग फैक्टर भी तो होगा। तो क्या वो कलर है, क्या वो टेम्परेचर है, या वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या फिर वो टाइम है? एवरीबडी गिव मी द आंसर। कैन यू सी द क्वेश्चन? यस, गिव मी द आंसर। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सॉरी, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? यस, कलर या फिर टेम्परेचर? सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम तो बिल्कुल भी गायब हो गए, सो ये तो हटा दो। कभी तुमने देखा है रूम में अगर लाल कलर का बल्ब लगा लो तो तेज आवाज आती है? सर ऐसा तो नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? टेम्परेचर। कभी गर्मियों में देखना कि साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एंड ठंडियों में ह्यूमिडिटी कम होती है तो साउंड ट्रेवल्स विच पेन? यस, साउंड ट्रेवल्स लेस फास्टर। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा? डिसाइडिंग फैक्टर हमारा हो गया टेम्परेचर। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड? क्यों? ये याद होना चाहिए, दिस क्वेश्चन विल कम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा रहेगी। यस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। ओके, अच्छा, हमने अब ना थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत कर लिए, बट मैंने देखा है बच्चे जो होते हैं ना, वो
बच्चे मतलब तुम, ओके सर जो बच्चे होते हैं ना, मतलब तुम लोग को इतना, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनको डर क्यों लगता है तुम्हें इतना? न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, मेरे पास 3 रूल फॉलो करने हैं। सिंपल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, फिर एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकालना। सिंपल, चलो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। वेरी सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है भाई? पूछ रहा है, एक पेंडुलम है, पेंडुलम देखा है, ऐसा होता है, ऐसा लटकता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर जाता है ना? घड़ी होती है, घड़ी, वो भी पेंडुलम होती है। तो ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। ऑसिलेशन मतलब यहां से यहां, देन यहां से यहां। तो ये ऑसिलेशन करता है। एक पूरा ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जब ये एक बार ऊपर से वापस नीचे वापस आएगा। देन 40 टाइम्स करता है 4 सेकंड में। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो सबको यहां पर पता होना चाहिए दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? सर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। नहीं, यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। सेकंड फॉर्मूला वो भी याद करने का तरीका, TO, टोटल टाइम अपॉन ऑसिलेशंस। टोटल टाइम अपॉन ओके, ऑसिलेशंस की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? टोटल टाइम अपॉन ऑसिलेशंस होगा ना, वही होगा इसका फॉर्मूला। तो टोटल टाइम कितने रखा है? इट इज 4 सेकेंड एंड ऑसिलेशंस कितने हैं? 40। अब इसको डिवाइड कौन नहीं कर पाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मुझे इसको डिवाइड करना नहीं आता। बताओ भाई, अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1। नहीं भाई, डिवाइड करना सीखो जाओ। मुझे आता है, तुम लोगों को नहीं आता, ठीक है? 0.1 सेकेंड, ठीक है? अच्छा सर, हमने भी कर लिया, ओके, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा इसका? 0.1 सेकेंड। क्या होगा? 0.1 सेकेंड। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड था क्या? मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कुछ हार्ड था। सिंपल याद होना चाहिए कि टोटल टाइम अपॉन ऑसिलेशंस क्या होता है? टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला किसका है? टाइम पीरियड का है। याद हो जाएगा अब? यस। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आए तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? पकड़ के और सॉल्व कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है। व्हाई डू यू रन फ्रॉम दिस चैप्टर? यस, द साउंड फ्रॉम द मॉस्किटो। अच्छा, मॉस्किटो क्या होता है? हाथी। यस, एक हाथी नहीं सर, मच्छर होता है। ओके, द साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज स्पीड और रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस। कितने वाइब्रेशंस पे? 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है? ये बोला है एक मच्छर अपने पर को वाइब्रेट करता है तभी तो वो उड़ता है। कितने? 500 वाइब्रेशंस, 500 बार हिलाता है 1 सेकेंड में, ठीक है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? सिंपल, अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2 फॉर्मूले होते हैं सर, एक तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी निकाल दो, या फिर एक तो टोटल टाइम अपॉन ऑसिलेशंस कर दो। ये 2 फॉर्मूले बताए हैं सर आपने। अच्छा, इन दोनों ही फॉर्मूले से इसमें आंसर आ सकता है, तो मैं जो मर्जी निकाल लो। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कहीं पर? नहीं सर। अच्छा, दे तो रखी है यार। ये जो मैंने बोला था कि 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ओ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ये दे तो रखी है कि 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो क्या अगर मैं इस 500 वाइब्रेशंस की जो वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? सर दूसरा तरीका सिंपल है भाई, कि यहां पर ये जो टोटल टाइम अपन ऑसिलेशंस हैं, अच्छा कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 500 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। टाइम कितना ले रहा है? 1 ले रहा है। तो 1 अपॉन 500, यहां पर भी क्या था? 1 अपॉन 500, ठीक है? दोनों ही फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 1 अपॉन 500। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करना मुझे फिर से नहीं आता। इसको सॉल्व करना बताओ कैसे होगा? बताओ भाई। अगर मैं इसको ऐसे करके ये 0 लगा दूं, फिर 1 पॉइंट लगा दूं, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर 2 0 लगा दूं, फिर ये 1000 बन जाएगा, फिर 2 लगा दूं। अच्छा ऐसे होता है। ओके, तुम लोगों को आता है यार, गुड।
ये आया भाई इसका आंसर, ठीक है, ये होगा 0.002 सेकेंड। कितना होगा? 0.002 सेकेंड। ये क्या आया है? क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर टाइम पीरियड, इट वाज आस्किंग फॉर टाइम पीरियड जेंटलमैन, 0.002 सेकेंड। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई है तो रिवाइंड द वीडियो। आई हैव गॉट 2, ये दो फॉर्मूले बता दिए भाई, एक तो याद हो जाएगा, एक तो याद कर सकते हो। यस, एक याद कर लो बस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस टाइम पीरियड। यस, नेक्स्ट चैप्टर नहीं क्वेश्चन। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। ये पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बता दो। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसमें होती है? एयर में? नहीं, सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड्स में। और ये वही बात पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा के हिसाब से सीक्वेंस बता दो। तो हमें एक बात तो पता है कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, तो यहां देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ये है और इससे भी ज्यादा ये है, तो सबसे ज्यादा तो हमेशा सॉलिड से होगी। तो लास्ट वाला जो सॉलिड है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी सारे एलिमिनेट कर दूं, तो आंसर जो बचेगा वो ऑप्शन डी बचेगा। दिस इज जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। इसे कहते हैं एलिमिनेशन, या फिर याद भी है हमें कि गैस में या फिर एयर में, दिस गैस इज रिप्रेजेंटिंग एयर। कंफ्यूज मत होना कि सर ने एयर बताया था। दिस एयर एंड लिक्विड देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अलावा कभी यहां पर मेटल भी लिखा होगा, है ना, आयरन भी लिखा हो सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सारे ही सॉलिड्स वुड भी इसमें इंक्लूड होगी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। यस, so the last question, last but not the least, the last question of this chapter, yes, इसके बाद all the questions of your curriculum for this chapter, sound chapter, complete हो जाएंगे, don't worry। 1 hertz is equal to how many vibrations? पूछ रहा है 1 hertz किसकी यूनिट थी? वेवलेंथ की? नहीं, सबको पता है, everybody knows, tell me, hertz किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो 1 हर्ट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी वाइब्रेशंस? ये पूछ रहा है हाउ मेनी वाइब्रेशंस। अच्छा, मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकालते हैं कि 1 सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है 1 हर्ट्स क्या होगा? भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन इन 1 सेकेंड। तो अगर मैं इसको 1 कर रहा हूं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी तो 1 ही हुई। यहां अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 1 हर्ट्ज दे रखी है ना, ऑसिलेशंस। तो ये जो ऑसिलेशन स्लैश वाइब्रेशंस हुआ ना, ये कितने आ गए? ये कितने आ गए भाई? ये तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 to 1, 1 to 1 तो 1 ही आएगा। अपॉन में 1 था ना इसके, समझ गए ना तुम लोग? ये अपॉन में 1 था, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाइब्रेशंस कितने आए? 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ओके, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो सिंपली तुम इतना समझो कि 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 हर्ट्स का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि किसी भी साउंड के ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्स है, कितनी है? 1 हर्ट्स है, उसका मतलब वो सिर्फ 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ओके, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। यस, ओके। तो जेंटलमैन, दिस वाज आवर क्लास। आई थिंक यू ऑल लाइक दिस। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना हो आया हो तो जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, है ना, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो and you'll eventually get to understand that what I'm trying to explain you. ज़्यादातर questions you must be knowing, but revision करने से this will be permanent in your mind. So बार बार इन questions को देखो, and these questions, most of these questions you will again see on examination. Sound was a very important chapter, and in the next chapter we'll surely take a very important chapter again. Most probably it would be a reflection. So till then, wait for the next class and keep studying, keep playing. And I have to say bye now. Okay, thank you all of you. Thank you.